Our first step is about introduction to lab equipment, and in this step we are going to discuss the following apparatus, the following equipments, which are cathode ray oscilloscope, digital multimeter, power supply, function generator, proto breadboard, and connecting line. Is the screen visible to you people? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And what about the voice? Is it clear now? Yes, sir. It's better now. Yes, Yes, sir. sir. All right, all right. So I was asking you people that have you ever heard the name of oscilloscope before? Yes, sir. See, our नाम सुना हो. Okay. So for what purpose we use oscilloscope? For generating an image. No. सर फ्रीक्वेंसी वगैरह टाइम पीरियड वगैरह मालूम करते हैं, बेसिकली फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं उससे वो करंट की या हाँ, सिग्नल इसका अपना एक डिस्प्ले होता है जिसके ऊपर हम वेव फॉर्म्स देख सकते हैं, ठीक है. जनरेट नहीं करते वेव फॉर्म, इट इज यूज्ड टू जस्ट वीव a वेव फॉर्म, ठीक है. different shapes of wave form can be weaved using oscilloscope. Now when you can weave the shape of the wave form, then you can definitely find the frequency of that signal, you can find the time period of that signal, and the amplitude of that signal, and other things that are related to that signal you can find using the cathode ray oscilloscope. Is it clear? Yes, sir. Okay, the second one is the digital multimeter. So I believe that you people are familiar with the use of digital multimeter. As its name indicates that it is a multimeter. Multi means it can measure multiple things. Like it can measure voltage, it can measure current, it can measure resistance of the resistor, and many other things. So we can say that it's a combination of the ohm meter, it's the ammeter and voltmeter. All these things combined are we can say called digital multimeter. So if you don't know about how to use digital multimeter, you can go and read this manual. नीचे इसमें दिया गया है कि किस तरह से आप डिजिटल मल्टीमीटर को यूज करते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर जो है वो नीचे गिवन है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि डिजिटल मल्टीमीटर को कैसे यूज किया जा सकता है. It's not that much difficult. It can easily be used. It has two terminals, and using the two terminals, you can find current and voltage of any branch inside a circuit. So when you have to find the voltage of a branch inside a circuit, you have to connect the digital multimeter and parallel with that branch, because you know that in parallel combination, the voltage across each branch remains the same, right? यस सर. And in case of current, what you have to do, you connect the digital multimeter सीरीज and series with the branch on which you are going to find the current of equipment. ठीक है. जब आप डिजिटल मल्टीमीटर के थ्रू वोल्टेज फाइंड करते हैं किसी ब्रांच के ऊपर सर्किट के अंदर, तो जिस ब्रांच पे आपने वोल्टेज फाइंड करना होता है, उस ब्रांच पे आप उस ब्रांच के साथ आप पैरेलल में डिजिटल मल्टीमीटर को कनेक्ट कर देते हैं, तो उससे आपके पास उस ब्रांच का वोल्टेज फाइंड हो जाता है ऑन डिजिटल मल्टीमीटर. और अगर आपने करंट फाइंड करना हो एक रजिस्टर के क्रॉस फॉर एग्जांपल, तो उस रजिस्टर के साथ आप डिजिटल मल्टीमीटर को सीरीज में लगा के उसका करंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज में हमारे पास करंट सेम है. ठीक है. Okay. यस सर. The third one is power supply. And for what purpose we use power supply? To supply power to our circuit. Power supply can be AC and can be DC. For giving an input supply to our circuit, we use power supply. It can be an AC circuit, it can be a DC circuit, and it can be a combination of both of them. All right. The fourth one is a function generator. It's a generator that generate function. So function क्या होता है? We call signal as a function, so we can call this function generator a signal generator also. What this generator do? It can generate different types of waveforms with different varieties of frequency. Like you can generate a sinusoidal signal with frequency of 100 hertz, 1000 hertz, 2000, 2000 hertz, and so on. And you can generate sawtooth waveform also using this signal generator or function generator. You can generate square waveform, you can generate triangular waveform with different frequencies.
We use this function generator or this signal generator to give AC voltage or sinusoidal voltage to a circuit when we have to test AC circuit, then we use function generator for that. Okay, the fifth one is proto breadboard. It is used for testing purposes of a circuit. We design a circuit on the breadboard and then we give an input to that circuit and we analyze the output. So before going to implement your circuit on the main scale, you have to first test it using the breadboard. And you use connecting wires for designing the circuit. Is there any confusion? No, sir. All right. So मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करा देता हूँ कि तौर ऑसिलोस्कोप यूजिंग सॉफ्टवेयर दैट इज प्रोटियस. ठीक है, क्योंकि लैब में जो है ऑसिलोस्कोप तो है, लेकिन इस वक्त हम ऑनलाइन क्लास रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रोटियस के थ्रू ऑसिलोस्कोप को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरह से आप प्रोटियस को यूज करते हैं, सॉरी ऑसिलोस्कोप को यूज करते हैं. एंड द सेम इज फॉर फंक्शन जनरेटर के फंक्शन जनरेटर से किस तरह आप डिफरेंट टाइप के वेवफॉर्म्स जो हैं अपने सर्किट को एज इनपुट दे सकते हैं. ठीक है, so for that you need to have Windows installed on your computer, and after Windows you have to install Proteus software on your system. It is easily accessible. आप इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं. गेट इनटू पीसी का जो वो है वेबसाइट है, उससे भी आपको Proteus मिल जाएगा. और इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं उसके लिए आप अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देखें या फिर गेट इनटू पीसी पे भी उसका लिखा हुआ है किस तरह से आप उसको एक्टिवेट करते हैं. तो या तो यूट्यूब से वीडियो देख के उसको एक्टिवेट करते हैं या फिर गूगल पे उसका तरीका देखने, तो आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा किस तरह से आप प्रोटियस को एक्टिवेट करते हैं. ठीक है, आफ्टर इंस्टॉलिंग द प्रोटियस ऑन योर सिस्टम, जस्ट गो एंड सर्च फॉर इट. So I have installed Proteus Air Professional on my system, so I'm going to launch it. When you open the Proteus, you will see a display like this on your system. So here you have to click on this icon, which is by the name of schematic capture. When you hover on this icon, a label appears here, schematic capture. Right? So when you click on that, you will get a sheet, and then on that sheet you can design any kind of circuit. Okay. So the sheet has been opened, and you can place different equipments and at this stage, and then you can connect them to each other, and using this play button you can simulate your circuit and analyze the circuit. Right? So for now, in this step we are going to test the oscilloscope and the function generator. So we need oscilloscope and function generator here in the components and on the sheet. So to get oscilloscope and function generator or signal generator, you have to click on this icon, which is just like a touch. Yeah, or you can say, what we can say, it has no label, but its icon is just like a touch. When you click on that, you get instruments, and inside the instruments you have oscilloscope, logic analyzer, and many other things. You have voltmeter with which you can measure the power of the circuit. You have a DC ammeter with which you can measure the current of a DC circuit, and you have DC voltmeter inside it, with the help of which you can measure the voltage of a DC circuit. So the two things that we need for this circuit that we are going to design are the oscilloscope and this signal generator. Okay, both of them are available inside this instruments mode, and you can enable this mode from by clicking this touch-like icon. Is it clear? Yes, sir. किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, किसी को कहीं समझ ना आया. No, sir. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ऑसिलोस्कोप के ऊपर क्लिक कर दिया. अब यहाँ पे सर्किट में किसी भी जगह पे मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ. एक दफा क्लिक किया तो
पॉइंटर के साथ वो अटैच हो गया। जब दूसरी दफा क्लिक किया तो वो प्लेस हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ से मैंने सिग्नल जनरेटर सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आया, पहली दफा क्लिक किया तो वो पॉइंटर के साथ अटैच हो गया। जब दूसरी दफा आप क्लिक करते हैं उसको तो वो प्लेस हो जाता है आपके उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, नाउ okay, so here we have this oscilloscope in which we have 4 channels by the name A, B, C, and D. The color of the A channel is yellow, the color of the B channel is blue, and so on. Okay. In the left, the oscilloscope that we have are of 2 channels, but here in Proteus, the oscilloscopes are of 4 channels. तो 2 channels oscilloscope भी होते हैं और 4 channel oscilloscope भी होते हैं। फिजिकली भी 4 channel oscilloscope होते हैं। जो लैब्स में हम यूज कर रहे हैं, हमारे पास जो लैब में अवेलेबल है वो 2 channel, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पे अगर आप उसको इस्तेमाल करना, ऑसिलोस्कोप को यूज करना सीख लेंगे तो लैब में भी आपको उसको यूज करना फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। एंड द फंक्शन जनरेटर भी बिल्कुल उसी तरह फंक्शनैलिटी है उसकी भी, जिस तरह लैब में फिजिकल एक फंक्शन जनरेटर जो पड़ा हुआ है उसकी फंक्शनैलिटी, ठीक है। यहाँ से अगर आप उसको इस्तेमाल करना सीख लेंगे तो जो लैब में पड़ा है उसको भी आप इसी पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव प्लेस्ड फंक्शन जनरेटर or we can say signal generator and the oscilloscope in our sheet. Now we are going to generate a signal from this signal generator and weave that signal on this oscilloscope, and we will have to weave that signal on the channel A of the oscilloscope. Okay? So for that you need to connect the positive terminal of this signal generator to the channel A, and you have to ground the negative terminal of the signal generator to get accurate result, ठीक है। अगर आपको accurate result चाहिए तो उसके लिए आप जब प्लस टर्मिनल को किसी एक चैनल के साथ अपने ऑसिलोस्कोप के कनेक्ट करते हैं तो दूसरे को जो नेगेटिव है उसको आपको ग्राउंड करना है। अब ग्राउंड करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये जो टर्मिनल्स मोड है, ठीक है, इस आइकन पे जब आप होवर करते हैं तो इसके नीचे लेवल आता है टर्मिनल्स में। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपके पास डिफरेंट जो है वो चीजें जो है वो आ जाती है। उसमें आपके पास नीचे से 5th नंबर पे है ग्राउंड, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक बार क्लिक करके पॉइंटर के साथ ही अटैच हो गया। जब दूसरी दफा क्लिक किया तो उसको प्लेस कर दिया, तो दूसरा जो टर्मिनल है फंक्शन जनरेटर का उसको हमने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक, सर्किट को रन करते हैं। सर्किट को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस प्ले बटन पे क्लिक करना पड़ता है, विच इज राइट एंड लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन, राइट। Okay, sir. Just click on there and the circuit has been simulated. अब ये जो स्क्रीन है ये बड़ा वाला ये ऑसिलोस्कोप का है और ये वाला जो है ये फंक्शन जनरेटर का है। फिजिकली जब आप लोग उसको नोट करते हैं ऑसिलोस्कोप को तो उसका डिस्प्ले इस तरह बिल्कुल इसी तरह का होता है, सामने से बिल्कुल वो इस तरह नजर आता है। उसमें डिफरेंट नॉब्स होते हैं आपके पास, कुछ वर्टिकली होते हैं, कुछ नॉब्स कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टली होते हैं। तो इसी तरह जिस तरह यहाँ पे आपको नॉब्स नजर आ रहे हैं बिल्कुल फ्रंट फीड से आपको फिजिकल जो ऑसिलोस्कोप है उसके भी बिल्कुल इसी तरह से आपको नॉब्स और डिस्प्ले नजर आ रहा है। और सेम इज फॉर सिग्नल जनरेटर। सो यहाँ पे हमने जो सिग्नल जनरेटर है उसको हमने सिर्फ चैनल ए के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो बाकी जो चैनल्स हैं उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं तो उनको हम ऑफ कर सकते हैं यूजिंग दिस बटन, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट सिलेक्शन ऑप्शन है, एसी है, डीसी है, ग्राउंड है और ऑफ, तो हम यूज नहीं कर रहे इसलिए इसको हम ऑफ करें। इसी तरह बाकी जो चैनल्स हैं उनको भी ऑफ कर देते हैं और सिर्फ एक चैनल को हमने छोड़ दिया। इसको पहले हम ग्राउंड कर देते हैं और ग्राउंड करने के बाद इसको हम नीचे सेंटर पे मूव कर देते हैं। इस नॉब से जितने भी चैनल्स हैं उन सारों के इन नॉब से हम उनकी हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है।
इसको हमने ऑसिलोस्कोप के स्क्रीन के सेंटर पे कर ग्राउंड करने के बाद, तो ये जो नॉब्स हैं इससे हम जितने भी 4 चैनल्स हैं उनके सिग्नल्स का वर्टिकल जो पोजीशन है वो चेंज करते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? यस सर। जी जी समझ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, गुड। और ये जो बटन्स हैं जो सिलेक्शन टाइप हैं, इससे आप जो है डिफरेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका सर्किट एसी है तो इसको एसी पे सेट कर देते हैं, अगर डीसी है तो डीसी पे सेट कर देते हैं, और अगर नहीं यूज कर रहे तो उसको आप ऑफ कर, और अगर उसकी सेटिंग करनी हो उसके सिग्नल की तो पहले उसको ग्राउंड कर दे, उसकी सेटिंग कर दे, उसके बाद उसको इनेबल कर दे। जिस तरह अभी मैंने इसको ग्राउंड करके सेंटर पे ले गया, लेकिन अभी मैंने इसको इनेबल नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पे हर एक चैनल के साथ एक और नोड भी है जो कि राउंडेड है, और उसमें अगर आप नीचे देख ले तो एक साइड पे वी लिखा हुआ है, दूसरे साइड पे एम वी। इसका मतलब ये है कि इस साइड पे आपके पास जो रीडिंग्स है वो मिली वोल्ट के स्केल पे है, और दूसरे साइड पे जो आपके पास रीडिंग है वो वोल्ट के स्केल पे। ठीक है, इसको कैसे यूज करते हैं इसकी तरफ अभी आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख ले तो जो सिग्नल जनरेटर है उसके अंदर हमारे पास 4 नोड्स हैं और 2 बटन हैं। इन बटन से ये जो वेव फॉर्म वाला बटन है इससे आप वेव फॉर्म का शेप चेंज कर सकते हैं, स्क्वायर, साटूथ, ट्राइंगुलर और साइनसाइडल के बीच में। ठीक है, और पोलैरिटी से आप उसकी पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर क्रिस्ट है तो उसको ट्रफ में, और अगर ट्रफ है तो उसको क्रिस्ट में, इन केस ऑफ साइनसाइड। ओके, यहाँ से हमने एक सिग्नल जनरेट करना है, फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट पीक टू पीक वोल्टेज का विद फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज। तो कैसे जनरेट करेंगे? अभी हमने क्या करना है, रेंज को भी सेट करना है और लेवल को भी सेट करना है। अगर रेंज को हम 1 पे सेट कर दे और लेवल को 5 पे सेट कर दे तो इससे हमारे पास जो वोल्टेज आता है वो 5 वोल्ट पीक टू पीक का आता है, जो एम्पलीट्यूड होगा वो पीक टू पीक 5 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमने क्या करना हो, हमने 50 मिली वोल्ट का करना हो एम्पलीट्यूड, तो उस केस में हम इसको रेंज को 10 मिली वोल्ट वाले स्केल पे लेके ले जाते हैं। उस पर जब हम इसको सेट करते हैं तो आप रेंज को लेवल के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 10 मिली वोल्ट को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे आता है 50 मिली वोल्ट। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे नीचे 50 मिली लिखा भी होगा। ठीक है, तो अगर आपने एम्पलीट्यूड उसका सेट करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, रेंज और लेवल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उससे जो वैल्यू आती है वो आपके पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है उस सिग्नल की जो आप इस सिग्नल जनरेटर से जनरेट करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? जी क्लियर है। यस यस सर। सर। ठीक है, उसके बाद अगर आपने फ्रीक्वेंसी सेट करनी हो तो उसका भी वही तरीका है कि आप रेंज को सेंटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उससे जो वैल्यू आती है वो आपके पास उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अभी हमने बात की कि हम 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल जनरेट करें, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसको हर्ट्ज के रेंज से निकाल के किलोहर्ट्ज के रेंज पे ले गए। ठीक है, इस साइड पे हर्ट्ज का रेंज है, इस पे किलोहर्ट्ज है, इस पे मिली हर्ट्ज, और यहाँ पे हम इसको 1 पे ले जाते हैं तो ये हमारे पास 1 किलोहर्ट्ज पे सेट हो। 1 किलो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो उससे आ जाएगा 1 किलोहर्ट्ज। क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक, हम इसको वापस 1 पे ले जाते हैं, तो करेंटली हमारे पास ये जो सिग्नल जनरेटर है ये जिस सिग्नल को जनरेट कर रहा है वो है 5 वोल्ट पीक टू पीक उसका एम्पलीट्यूड है और 1 किलोहर्ट्ज की उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब यहाँ से अगर सिग्नल हमने जनरेट कर दिया तो उसको यहाँ पे रीड भी करना है। रीड करने के लिए हम चूंकि साइनसाइडल एक सिग्नल दे रहे हैं तो इस चैनल को हम एसी पे सेट कर दें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक साइनसाइडल सिग्नल जो है वो जनरेट हो गया है। अब यहाँ पे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमें काफी कम नजर आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने इस चैनल को 5 वोल्ट पर डिवीजन पे सेट किया हुआ है। डिवीजन क्या चीज है? अगर यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें आपके पास एक ग्रिड नजर आ रहा है, एक छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं स्क्रीन के अंदर, विजिबल है?
यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, ये हमारे पास एक डिवीजन, एक स्क्वायर जो है वो एक डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टली भी है और ये वर्टिकली भी है। ठीक है, तो वर्टिकली हम यहाँ से वोल्ट पर डिवीजन सेट करते हैं और हॉरिजॉन्टली यहाँ पे इस स्वीप टाइम के नोट से हम उसका टाइम पीरियड सेट करते हैं पर डिवीजन। ठीक है, इस नोब से ये जो ऑरेंज कलर का नोब है, इससे हम टाइम पीरियड की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है ना? अगर इसको हम चेंज करेंगे तो आपके पास जो सिग्नल है वो हॉरिजॉन्टली उसके शेप में चेंज आएगा, उस फॉर्म के। और अगर आप इस नॉब को चेंज करेंगे तो आपके पास वर्टिकली सिग्नल के अंदर चेंज आएगा। ठीक है, तो मैं इसको वापस ऐसी पे सेट कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं 2 वोल्ट पर डिवीजन पे कर देता हूँ। तो अगर 2 वोल्ट पर डिवीजन पे है, यानी एक स्क्वायर अगर 2 वोल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको 2 वोल्ट पर डिवीजन पे सेट कर दिया। ठीक है, 2 वोल्ट पर डिवीजन पे सेट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डिवीजन 2 वोल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक स्क्वायर जो यहाँ पे छोटा स्क्वायर है वो आपके पास 2 वोल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर एक स्क्वायर 2 वोल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है तो 5 वोल्ट्स के लिए कितने स्क्वायर्स होने चाहिए, कितने डिविजन होने चाहिए? 2.5। एग्जैक्टली 2.5 होने चाहिए। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर ले, अब देखें, ये हमारे पास एक डिवीजन, ये दूसरा, और ये तीसरा वाला जो है वो उसका हाफ है। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 डिविजन है और 2 वोल्ट पर डिवीजन है। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2 से आता है 5 वोल्ट। इट मीन्स कि यहाँ से जो हम एम्पलीट्यूड जनरेट करें 5 का, वो यहाँ पे एग्जैक्ट वही मिलता है। ठीक है, इसको अगर हम 1 कर ले तो ये और भी क्लियर हो जाए। आप देख लें, ठीक है, अब 1 वोल्ट पर डिवीजन है, तो अगर एक डिवीजन 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है तो 5 वोल्ट यहाँ से जो हम जनरेट करेंगे वो कितने डिविजन कंप्राइज करेगा? 5। 5। 1 2 3 4 5। ठीक हो गया? सही है। अच्छा, यस अब सर। हमने यहाँ से ऑसिलोस्कोप से इस फ्रीक्वेंसी को भी वेरीफाई करना। वोल्टेज तो हमने, एम्पलीट्यूड तो हमने वेरीफाई कर दिया, वहां से हम 5 दे रहे थे तो यहाँ भी 5 में हो जाए। लेकिन फ्रीक्वेंसी को हम कैसे वेरीफाई करेंगे? वहां से फ्रीक्वेंसी हमने 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी टाइम हमने पीरियड। प्रोवाइड कर टाइम पीरियड से। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये काफी जो है कंजेस्टेड टाइप एक वेव हमारे पास बना हुआ है, क्योंकि उसको रीड करना है, उसको एनालाइज करना इतना आसान नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, हम हॉरिजॉन्टली इस वेव फॉर्म को क्लियर करने के लिए हम स्वीप टाइम का नोट यूज करते हैं। तो हम यहाँ से इसको कम कर देते हैं ताकि हमारे पास सिग्नल जो है वो सही से रिसीव हो जाए। ठीक हो गया? अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे जो इस नॉब को हमने सेट किया हुआ है, इस साइड पे अगर आप इस साइड से देखते हैं, ऑन द राइट साइड वी हैव द स्केल ऑन मिलीसेकंड एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव द स्केल ऑन माइक्रोसेकंड। So currently we have set this knob on 0.2 millisecond, right? यहाँ से इसको जूम नहीं कर सकता मैं इस ऑसिलोस्कोप को। अगर आपको सही नजर नहीं आ रहा तो आप अपने लैपटॉप पे या अपने उस पे मोबाइल पे उसको जूम कर सकते हैं अपने स्क्रीन। ठीक है, अच्छा, तो इसको हमने सेट किया हुआ है 0.2 मिलीसेकंड पे। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक डिवीजन है वो 0.2 मिलीसेकंड को रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टली। अब हम हॉरिजॉन्टली इस चीज को देखें। ठीक है, हॉरिजॉन्टली आपके पास एक डिवीजन जो है वो 0.2 मिलीसेकंड्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 0.2 मिलीसेकंड एक डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है, तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक साइकिल है, साइकिल के अंदर टोटल कितने डिविजन हैं। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय ए कंप्लीट राउंड ट्रिप, और वी कैन से बाय ए कंप्लीट वन साइकिल। एक कंप्लीट वन साइकिल जितना टाइम लेता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक साइकिल में हमारे पास एक क्रिस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ होता है। ठीक है, तो हमारा जो ये जो एक साइकिल है वो कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है?
यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर ले तो हमारा एक साइकिल जो है यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर ये कंप्लीट होता है तो टोटल कितने डिविजन इसमें कवर किए हॉरिजॉन्टली? 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक साइकिल जो है वो टोटल 5 डिविजन्स को कवर कर रहा है। तो अगर 5 डिविजन्स हैं और एक डिवीजन 0.2 मिली सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है तो 5 डिविजन्स कितने को करता है? एक डिवीजन 0.2 है तो 5 1 1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 मिली सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? 1 पे 1 और टाइम पीरियड को डिवाइड करते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 1 मिली सेकेंड कर ले तो उससे आपके पास आ जाएगा 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां से जो फ्रीक्वेंसी हम दे रहे थे 1 किलो हर्ट्ज की वो हमने ऑसिलोस्कोप से भी वेरीफाई करी। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक, तो अब हम वापस अपने मैनुअल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है के तौर पे ऑसिलोस्कोप के ऊपर आप लोगों ने जब आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर देंगे यूजिंग प्रोटियस, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है? जो एम्पलीट्यूड आप सिग्नल जनरेटर से जनरेट करके देते हैं उसको भी यहाँ पे नोट करना है। फ्रीक्वेंसी जो आप सिग्नल जनरेटर से जनरेट करके देते हैं उसको भी नोट करना है। उसका टाइम पीरियड ऑसिलोस्कोप से फाइंड करके यहाँ पे मेंशन करना है। और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके टाइम पीरियड आपने फाइंड कर दिया जिस तरह भी हमने किया, उससे हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की। तो जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाए उसको भी यहाँ पे मेंशन करना है। तो अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है जो सिग्नल जनरेटर से हमने जनरेट की थी, अगर ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है तो इसका मतलब परसेंटेज एरर 0 है। अगर दोनों में कोई डिफरेंस है तो उसको आप फाइंड कर लें। इस तरह से उसके लिए फॉर्मूला जो है वो कुछ यूं होगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल जो सिग्नल जनरेटर से हम फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं उसको हम एफ कह देते हैं, और जो ऑसिलोस्कोप पे हम फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करते हैं उसको हम एफ कह देते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए हम क्या कर देते हैं? हम एफ एस माइनस एफ सी कर देते हैं। एफ एस पे उसको डिवाइड कर देते हैं और इस पूरे को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर आखिर में उसको एब्सोल्यूट ले लेते हैं। तो इससे आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, यस। तो इस तरीके से आप उसका परसेंटेज एरर फाइंड करके इस टेबल के अंदर फिल करें। उसके अलावा डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट है। तो अगर डिजिटल मल्टीमीटर आपके पास अवेलेबल है तो उसी से परफॉर्म कर एक्सपेरिमेंट। अदरवाइज आप लोग क्या कर ले कि यहाँ पे आपको पावर चाहिए, वोल्टेज चाहिए और एरर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग अच्छा पावर सप्लाई से आप जो वोल्टेज दे रहे वो डिजिटल मल्टीमीटर से आप जो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं वो वाला, दोनों अगर सेम है तो परसेंटेज एरर 0 है। अगर दोनों में कोई डिफरेंस है तो परसेंटेज एरर उसी तरीके से जिस तरह भी हमने किया उसी तरीके से फाइंड करके यहाँ पे उसको मेंशन करें। तो अगर आपके पास नहीं है डिजिटल मल्टीमीटर तो आप प्रोटियस के अंदर वोल्ट मीटर और एमीटर को यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, फॉर फाइंडिंग दिस वोल्टेज यू कैन यूज voltmeter and the Proteus, and finding the current you can use ammeter and the Proteus. राइट, उसी तरीके से एक सर्किट डिजाइन करके उसके अंदर आप या फिर अगर सर्किट ना भी डिजाइन करें सिंपल प्रोटियस के अंदर आप एक यहाँ से आप डीसी सप्लाई जो है अपने सर्किट के अंदर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक सप्लाई प्लेस कर दिया और अब मैं इसका जो वोल्टेज है उसको मैं देखना चाहता हूँ कि कितना वोल्टेज है मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर लूंगा, मैं वापस इंस्ट्रूमेंट्स में चला जाऊंगा और वहां से मैं डीसी वोल्टमीटर उठा के यहाँ पे उसको प्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हमने पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरा साइड हम इसका ग्राउंड कर दिया। ठीक हो गया। अब इसको हम वैल्यू कैसे दे सकते हैं, इस पे जब आप डबल क्लिक करें तो यहाँ से आप इसको
वोल्टेज की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5 वोल्ट दे रहा हूँ, मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये जो डीसी पावर सप्लाई है ये मुझे 5 वोल्ट जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें मल्टीमीटर पे तो +5 वोल्ट का वोल्टेज मुझे मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अगर करंट फाइंड कर रहे हैं तो एमीटर यहाँ पे उसके साथ लगा के उसका करंट भी मालूम कर सकते हैं।